Hello guys, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel then please do so and hit the bell button to get the latest off-campus updates, government job updates, etc. So guys, today I will be discussing about Cognizant selection process for 2021 batch. Friends and eligibility criteria, selection process, salary offered or interview questions. So let's start the video. First I will be discussing about Cognizant company. Cognizant is an American multinational corporation that provides IT services including digital technology, consulting and operation services. It is headquartered in Teaneck, New Jersey, United States. CTS is listed in the Nasdaq 100 and S&P 500 indices. It was founded as an in-house technology unit of Dun and Bradstreet in 1994 and started serving external clients in 1996. Cognizant is listed for the ninth consecutive years among Fortune's most admired company. Cognizant is also listed on Forbes Fast Tech 25 companies at 18th position with over 50 delivery centers worldwide and approximately 2,44,300 employees as of June 30, 2016. Cognizant is a member of Nasdaq in and S&P 500, the Global 2000 and the Fortune 500 and is ranked among the top performing and the fastest growing company in the world. A role and package offered in on campus. This year Cognizant is hiring for two roles for Gen Z profile or Gen Z next profile. For Gen Z profile, Cognizant offers CTC 4.5 LPA. For Gen Z next profile, CTC will be 6.75 LPA. For Gen Z profile selection process, there are two rounds in this process. Round 1, that is aptitude and coding debugging questions were asked. Round 2, that is Gen Z interview, in which technical cognitive abilities and the right attitude will be checked. Or before joining 3 to 6 month Cognizant internship और Cognizant recommended skill certification प्लस कॉलेज ग्रेजुएशन स्कोर ऑफ 60%. अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 3 to 6 मंथ की इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी और आपको जेएनसी में सीसी ऑफर करेगी 4.5 LPA जेएनसी रोल के लिए. For Gen Z next profile, selection process will be round. There are 3 rounds in this profile. Round 1, that is aptitude and coding debugging question. Round 2, that is programming and problem solving skill question will be asked. And round 3 will be Gen Z next interview problem articulation, algorithm capabilities, programming concepts, cognitive abilities and the right attitude questions will be asked. और फोर्थ Gen Z नेक्स्ट CTC ऑफर्ड विल बी 6.75 LPA. अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है इसमें तो आपको जो CTC मिलेगी 6.7 LPA. अगर आपका सेकंड राउंड क्लियर नहीं होता है Gen Z नेक्स्ट में तो आपको Gen Z की प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू ले जाएगा आपका. अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है Gen Z नेक्स्ट के लिए तो आपको 3 to 6 मंथ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी कंपनी और आपको कॉग्निजेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन स्किल्स प्रोवाइड करेगी. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 2021 बैच स्टूडेंट्स आर 2021 बैच स्टूडेंट्स ऑफ एमई एमटेक एमसीए एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग students can apply. Consistent academic record of minimum of 60% in 10th 12th diploma UG and PG or calculate percentages aggregate equals to percentage of sum of all subject marks scored upon total number of subjects. आपको इसमें 60% चाहिए 10th 12th और अंडर ग्रेजुएट तक. नो स्टैंडिंग एरियर्स अलाउड. मैक्सिमम 2 years गैप अलाउड इन CTS. Students applied for re-evaluation and waiting for the results would be considered with the initial result scores declared. Appropriate CGPA to conversion to be considered as per university norms. कंपनी को चाहिए स्ट्रॉन्ग रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. ओपन ओनली टू इंडियन नेशनल्स. फ्लेक्सिबल टू रिलोकेट टू एनीवेयर इन इंडिया. वर्क इन एनी शिफ्ट और डोमेन. अब मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी एग्जाम में आपको. स्टूडेंट्स मस्ट अपलोड देयर रेज्यूमे विथ एम्बेडेड फोटोग्राफ्स, ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग स्कूल सर्टिफिकेट्स, कॉलेज सेमेस्टर मार्कशीट्स, गवर्नमेंट ID proof, scanned 2B1
वो भी PDF फाइल में आपको करना पड़ेगा, डॉट PDF फाइल में। ड्यूरिंग टेस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मैंडेटरी प्रोसेस टू अपीयर टू द फॉर द टेस्ट, स्टूडेंट्स शुड हैव बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी रेडी टू बी सेट ड्यूरिंग रेज्यूमे। रेज्यूमे होना चाहिए आपका ऑनलाइन इंटरव्यू के टाइम 2 पेजेस का मैक्सिमम, विथ हाई रेजोल्यूशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एम्बेडेड, ऑल एकेडमिक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट एंड पैन कार्ड इफ़ एप्लीकेबल। तो आपको इन सब चीज़ों की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान। अब ऑनलाइन टेस्ट पैटर्न बता देता हूँ फॉर फर्स्ट राउंड फॉर बोथ प्रोफाइल्स जेएनसी एंड जेएनसी नेक्स्ट। तो इसमें 4 सेक्शन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और ऑटोमेटा फिक्स। जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 16 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 16 मिनट्स मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। वर्बल एबिलिटी में 23 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 8 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। और ऑटोमेटा के 7 क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। अब जेएनसी नेक्स्ट राउंड 2 में क्या होगा बता देता हूँ। दिस राउंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। फर्स्ट राउंड दैट इज प्रोग्रामिंग स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, और सेकंड सेक्शन में प्रॉब्लम सॉल्विंग के डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम रिलेटेड क्वेश्चन दे विल आस्क्ड। अब कॉग्निजेंट ऑनलाइन टेस्ट की पॉइंट्स बता देता हूँ क्या रहेगा। आपका टेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा एमकेट, नो नेगेटिव मार्किंग, नो इंटरसेक्शनल नेविगेशनल अलाउड, एवरी क्वेश्चन इज मैंडेटरी, यू कैन नॉट स्किप एनी क्वेश्चन वंस आंसर्ड कैन नॉट बी रिव्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक्स बताता हूँ क्या क्या आएंगे। टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, प्रोबेबिलिटी, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शंस। अब लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक्स बता देता हूँ एग्जाम के लिए क्या क्या आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, ब्लड रिलेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, विजुअल रीजनिंग। अब वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स बता देता हूँ आपके लिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वोकेबलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जम्बल्ड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन एंड इंटरोगेटिव्स, सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। अब ऑटोमेटा फिक्स टॉपिक्स और डिबगिंग कोडिंग के क्वेश्चन बता देता हूँ क्या 7 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन पूछेंगे। लॉजिकल एरर के ढूंढना पड़ेगा आपको, कोड रीयूज़ करना पड़ेगा, कंपाइलेशन एरर ढूंढना पड़ेगा आपको, सिंटैक्टिकल एरर देखना पड़ेगा। और इसमें आपको सिर्फ 3 लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं आप, C++, जावा। अब टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन कंपनी ने लास्ट ईयर जो पूछे बता देता हूँ। फर्स्ट पहले आपको इंट्रोडक्शन लेगी कंपनी, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी आपसे, डीएस एंड एल्गो के कॉन्सेप्ट पूछेगी, आपको प्रोग्राम नहीं लिखवाएगी, नोट प्रोग्राम्स, C++, ओप्स, DBMS और ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन पूछेगी कंपनी। और ये फेस टू फेस इंटरव्यू होगा आपका, और इसमें थ्योरी क्वेश्चंस प्लस फ्री प्रोग्राम्स दे विल आस्क्ड, और क्वेश्चंस फ्रॉम रेज्यूमे पूछती है कंपनी टेक्निकल इंटरव्यू में। HR इंटरव्यू क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, what do you know about Cognizant, why do you want to join Cognizant, why should we hire you, are you willing to relocate, where do you see yourself in 5 years, what are your strengths and weaknesses. So guys, thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye, see you soon.